बस पढ़ा दो सर, ठीक है ना। Importance of statistics in government and economics. Statistics is an indispensable tool for proper understanding of various economic problems. Indispensable. Every branch of economics takes support from statistics in order to prove various economic theories in it. Every branch of economics, it takes support from statistics to prove their theories. Statistics provide important guidelines for the formulation of various economic policies. Most of the economic problems are capable of being expressed in numerical figures. जैसे कि मैंने बताया, poverty line, number of people below the poverty line, unemployment rate, literacy rate. So there are so many economic problems, almost all of them, which can be quantified. For example, output of agriculture, agricultural output बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं. Volume of exports, exports बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं. Imports बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं. Commodity के prices बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं. In each case, the data is affected by multiplicity of factors. Further, it can be shown that other conditions prescribed for statistical data are also satisfied. So conditions must be satisfied. जो हमने definition में, तब it can be considered as a statistical data. So we can say that study of various economic problems is essentially one of a statistical nature. Correct? Studying the various economic problems is a kind of, a type of a statistical study only. It is statistical in nature because it is all about numbers. कितने लोग, for example, चलो rural area, urban area, what percentage of the population is in the urban areas, what percentage of the population is in the rural areas, sectoral contribution, yeah, occupational structure, what percentage of the population is employed in the primary sector is farming and related to natural resources, what percentage of the population is employed in the secondary sector is the manufacturing sector, industrial sector, what percentage of the population is involved in the tertiary sector, services sector. तो ये सब इकोनॉमिक स्टडी है, बट विदाउट स्टैटिस्टिक्स इम्पॉसिबल. विदाउट statistics is an indispensable tool to study the economic problems. Some of the uses of statistics in economics are as follows. Number one, formulation of economic laws, the famous law of demand. What is the law of demand? पढ़ेंगे अब अभी माइक्रो में. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ही वही है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड. The law of demand states that there is an inverse relationship between price of a commodity and its quantity demanded. Price बढ़ेगा, demand गिरेगी. Price कम होगा, demand बढ़ेगी. Relation. Formulation of economic laws, law of demand, elasticity of demand, they have been developed by inductive method of generalization, which is also based on statistical principles. तो उन्होंने डेटा कलेक्ट करा कि भाई साहब आइसक्रीम खाओगे, नहीं खाओगे, आप खाओगे, जल्दी खा लो तभी एग्जाम तो खत्म होगा. खाओगे जी. 10 रुपए की है, कितनी खाओगे? 20 रुपए की है, कितनी खाओगे? 30 रुपए की है, कितनी खाओगे? कम हो गई ना. तो जैसे जैसे प्राइस, तो ऐसे सबका सर्वे लिया तो देखा कि यार जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो डिमांड कम हो रही है. अरे सर इसके लिए सर्वे क्या लेना था, ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है. जरूरी नहीं है 10 पे भी इसकी डिमांड सेम रही, 20 पे भी सेम रही. तो ऐसा हो सकता है ना कि डिमांड चेंज नहीं हुई, तो बिजनेसमैन ने कहा कि फिर तो मैं बेवकूफ हूं जो 10 रुपए का बेच रहा हूँ, कर दो इसको 20 रुपए. बात समझ आई? तो वो पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, तब डिसाइड करते हैं कि 30% कह रहे इस चीज की तो डिमांड अच्छी है, इस पर तो 20% डिस्काउंट दो. कह रहे ये नहीं चल रहा, इस पे 50% दो. तो ऐसे डिसाइड होता है कि किस चीज पे कितना डिस्काउंट देना है, किस चीज की कितनी डिमांड है. डेटा पे ही तो बेस्ड है डिसीजन. क्या सब पे फ्लैट 50% होता है? सर लिखा होता है वो फ्लैट 50 तो सब पे ही होता है. नहीं बेटा, अंदर घुसते हैं तो हमेशा एक फ्रेश अराइवल्स भी होते हैं, उन पे नहीं होता कोई डिस्काउंट. तो उन्हें पता ना उस चीज की डिमांड ज्यादा है, डेटा है उनके पास. फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉज helps in understanding and solving an economic problem. Statistical data and statistical methods play a vital role in understanding and solving economic problems such as poverty, unemployment, disparities in the distribution, unequal distribution of
इनकम एंड वेल्थ। तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने में डेटा होगा तभी तो होगा। सब कैसे गवर्नमेंट कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेगी? इनइक्वालिटीज तो लोगों के काम करने की वजह से है। जो लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, जो ज्यादा कमा रहे हैं कमा रहे हैं, जो नहीं काम कर रहे वो नहीं कमा रहे। अब जो नहीं कमा रहे, फिर गवर्नमेंट उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। अरे सर ये भी सही है, नहीं कर रहे तो ऑप्शन नहीं है गवर्नमेंट के पास। पॉइंट है कि गवर्नमेंट को खर्चा करना है। किस पे खर्चा करेगी? जिनको उनकी ज्यादा जरूरत है। जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनको मेडिकल फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी, एजुकेशन फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी, और हो सके तो उनको खाने का सामान भी देना पड़ेगा। टू रिड्यूस द इनइक्वालिटीज, टू रिड्यूस द इनइक्वालिटीज। वो क्रॉस हो गए तो और बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, तभी तो उनको डेटा से ही तो पता चलेगा कि अब किसकी हेल्प करनी है। तो फॉर दैट दे नीड स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि चेंज होता रहेगा ना। जरूरी थोड़ा है कि हर बारी सेम ही लोगों को हेल्प चाहिए हो सकता है अब किसी और को ज्यादा हेल्प चाहिए हो। तो दैट इज वेयर स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स। स्टडी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स, स्टडी ऑफ, हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में परफेक्ट कंपटीशन, जो लास्ट सेगमेंट होगा प्राइस डिटर्मिनेशन, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर, लास्ट है मार्केट, मार्केट बिहेवियर। तो मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, ओलिगोपोली, मोनोपोली, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स के बारे में। दे रिक्वायर स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन ऑफ मार्केट प्राइसेस। Statistics also facilitates intersectoral and intertemporal comparison. Statistics helps in the study of different types of markets. It helps in establishing mathematical relation. Statistical methods can also be used to estimate mathematical relation and cause and effect relationship. अगर प्राइस बढ़ाया तो डिमांड गिरेगी इतने से, तो एक मैथमेटिकल रिलेशन एस्टैब्लिश हो गई ना कि आपने प्राइस बढ़ाया 10% से, आपकी डिमांड गिरेगी 20% से। गलती से भी मत बढ़ा देना। आपने प्राइस बढ़ाया 10% से, आपकी डिमांड गिरी 2-3% से, कह रहे बढ़ा दो, क्योंकि 2-3% की डिमांड गिरेगी, प्राइस का परसेंटेज ज्यादा है, ओवरऑल कलेक्शन तो ज्यादा ही होगी। तो एक मैथमेटिकल रिलेशन एस्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं स्टैटिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइसेस ऑन द क्वांटिटीज डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी shows a mathematical form of demand relationship. Useful to study behavior of different economic concepts. Trend series analysis is used to study behavior of prices, production, consumption, money in circulation, bank deposits, different aspects. Price analysis, statistical surveys of prices help in studying the theories of prices, pricing policy, price trends as well as their relationship. गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी होती हैं प्राइस पॉलिसीज। अब जैसे एमएसपी पे लड़ाई होती रहती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना ऑफर करें, क्या करें, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई। स्टैटिस्टिकल डेटा चाहिए उसके लिए कि भैया कितनी प्रोडक्शन हो गई इस बारी, क्यों नहीं बिक रहा सामान, क्या है मार्केट में प्राइस, क्या प्राइस हम प्राइस पॉलिसीज के लिए यूज होता है। किसी भी चीज का प्राइस फिक्स करना है, यू नीड इंफॉर्मेशन अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। कह रहे कितना है सप्लाई, कितनी यूनिट्स बन गई, अवेलेबल यूनिट्स कितनी है, डिमांड क्या है उस चीज की। तो प्राइस पॉलिसी, प्राइस एनालिसिस, वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट पार्ट, वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट। बिजनेसमैन के लिए सबसे ट्रिकी पार्ट क्या होता होगा कि प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड करे और कितना करे। Statistics is of great significance considering the various economic activities: consumption, production, distribution, exchange. Consumption. Statistics help to find out ways in which different groups of people spend their income on necessities, comforts and luxuries. Consumption pattern analyze करने में help करता है। ये सब study कौन करता है? या तो गवर्नमेंट या बिजनेस हाउसेस, या तो गवर्नमेंट या बिजनेस हाउसेस। एज अ कंज्यूमर का कभी आप इतने सर्वे और इतनी बहुत रेयरली, मतलब कुछ होते हैं लोग कि कोई भी सामान खरीदने से पहले अच्छे से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, बट वो बहुत छोटा फ्रैक्शन होता है। तो नॉर्मली जो इतनी स्टडी करता है वो गवर्नमेंट और बिजनेस हाउसेस, क्योंकि उनके स्टेक बहुत हाई है, उनके स्टेक बहुत हाई है। तो कंजम्पशन पैटर्न एनालिसिस, सच स्टैटिस्टिक्स इज वेरी हेल्पफुल फॉर डिटरमिनिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टैक्सेबल कैपेसिटी। अभी गवर्नमेंट जानना चाहेगी ना कि सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा, टैक्स ले लें इनसे और एक और नया टैक्स इंट्रोड्यूस करें, ज्यादा खुश लग रहे हैं ये।
In the study of production, statistics helps to measure and compare the productivity of different factors of production: land, labor, capital, entrepreneurship or enterprise. Statistics also helps to adjust the supply according to the demand. इस चीज की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई बढ़ाओ. इस चीज की डिमांड कम है, सप्लाई कम करो. पहले ही आपके पास शॉर्टेज है रिसोर्सेज की, इसको कहीं और शिफ्ट करो. In the study of exchange, in exchange price determination through market forces, demand and supply is studied. Statistics help to study the theory of price determination. कि exchange होगा किस price पे, तो उसके लिए demand और supply दोनों एक साथ. In the study of distribution, in the distribution आया था इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. लैंड को क्या मिलता है? रेंट. लेबर को क्या मिलती है? वेजेस. कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट. एंटरप्रेन्योर क्या ले जाता है? प्रॉफिट. इन डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ इज द इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड? हाउ आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड? वी स्टडी हाउ नेशनल इनकम जनरेटेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. Statistical data helps in solving various problems. What to produce, how to produce, for whom to produce. तो statistics प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है. तो ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स. क्या क्या कर लिया हमने? गवर्नमेंट कर लिया और इकोनॉमिक्स कर लिया. नेक्स्ट क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग और बिजनेस बचा है, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में.